Hello students, welcome to this video. In this video lesson, we are going to talk about class 10th Geography chapter Forest and Wildlife Resources. Forest and Wildlife Resources chapter number 2, class 10th of Geography. Students, as we all know, forests are also an important essential element for animals and for human beings' life. जैसे अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो रहने के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी एनिमल्स के लिए. सेकंड, अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो हाउ विल बी हैविंग ट्रीज, हाउ विल बी हैविंग ऑक्सीजन. Introduction here I am giving you. The earth has immense biodiversity. We humans along with all living organisms form a complex web of ecological system in which we are only a part and very much dependent on this system for our own existence. जैसे कि अर्थ एक बायोडाइवर्सिटी है, प्रोजेक्ट बायोडाइवर्सिटी है. हम ह्यूमंस को रहने के लिए इस सिस्टम इकोलॉजिकल सिस्टम को बनाए रखने के लिए कि इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इस इम्पॉर्टेंट पार्ट को फॉलो करना पड़ता है, साइकिल को फॉलो करना पड़ता है अगर हम लाइफ में जीना चाहते हैं, अपनी लाइफ में अपने आप को एग्जिस्टेंस देना चाहते हैं. Forests play a key role in the ecological system as these are also the primary producers on which all living beings depend. फॉरेस्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है फॉरेस्ट का हमारी लाइफ में. एक इकोलॉजिकल सिस्टम है जिस सिस्टम से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किस पे पड़ता है, ह्यूमन बींग्स पे पड़ता है, ह्यूमन लाइफ्स पे पड़ता है. फर्स्ट ऑफ ऑल what is now I am going to tell you from the book part. Narak, my lord, you are the creator of music in the world of Lepchas. O Narak, my lord, let me dedicate myself to you. Let me gather your music from the springs, the rivers, the mountain, the forest, the insects and the animals. Let me gather your music from the sweet breeze and offer it to you. इसमें क्या है, लॉर्ड को, भगवान को दिया जाता है कि क्या मैं चाहता हूँ. एक पर्सन कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो कुछ भी है, जो म्यूज़िक है, जो स्प्रिंग है, जो रिवर है, जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं, वो मैं आपको डिवोट करूँ, आपको दूँ. We share this planet with millions of other living beings, starting from microorganisms and bacteria, lichens to banyan tree, elephants and blue whales. This entire habitat that we live in has immense biodiversity. We humans, along with all living organisms, form a complex web of ecological system in which we are only a part and very much dependent on this system for our own existence. For example, the plant, animal, and microorganisms recreate the quality of the air we breathe, the water we drink, and the soil that produce our food, without which we cannot survive. Forests play a key role in the ecological system as these are also the primary producers of which all other living beings depend. देखिए, इसमें बताया गया है कि हम अपने प्लेनेट को, अपने अर्थ को, जहाँ हम रहते हैं वहाँ वो हम बहुत सारे लोगों के संग शेयर करते हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, एलिफेंट्स हो, ब्लू वेल्स हो. ये सारे जितने भी एनिमल्स हैं, हम कहीं ना कहीं इन पे डिपेंड है, कहीं ना कहीं ये हम पे डिपेंड है. इनकी वजह से हमें खाने पीने के लिए वाटर, खाने के लिए खाना, सॉइल मिलता है, उस तरीके के सॉइल फर्टिलाइज़ किया जा सके. ये सब चीज़ें कहाँ से, किस पे डिपेंड होती हैं, सब कुछ हमारे इकोसिस्टम पे डिपेंड करता है जिसमें कि हम रहते हैं. Biodiversity and biological diversity is immensely rich in wildlife and cultivate species diverse in form and function but closely integrated in a system through multi-network of interdependencies. बायोडाइवर्सिटी एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है, एक तरह का प्रोसेस है जिसमें वाइल्ड लाइफ, बहुत सारे तरीके के ह्यूमन बींग्स रहते हैं और आपस में एक नेटवर्क कनेक्ट करते हैं और आपस में चीज़ों को वो शेयर करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्लोरा एंड फोना इन इंडिया. फ्लोरा एंड फोना कैसे बोलते हैं, जितने भी हमारे देखिए इसमें इफ़ यू लुक अराउंड, इफ़ यू विल फाइंड दैट देयर आर सम एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर यूनिक इन योर एरिया. In fact, India is one of the world's richest country in terms of its wide array of biological diversity.
This is possibly twice or thrice the number, yet in details about the extent and variety of may have released the importance of diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life that we take these for granted, but lately they are under great stress mainly due to insensitivity to our environment. फ्लोरा एंड फोना होता है हमारे आसपास जितने भी प्लांट्स हैं जो हमारे आसपास रह रहे हैं, जितने भी एनिमल्स हैं। अब इसमें क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम। वैसे अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा, अगर हम परसेंटेज की बात करें, सबसे ज़्यादा परसेंटेज हमारे आसपास है, इंडिया में है, बट तब भी हम इनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और जिस वजह से कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स में भी आ जाते हैं। सम एस्टिमेटेड suggest that at least 10% of India's recorded wild flora and 20% of its mammals are on the threatened list। एक एस्टिमेट की बात की जाए तो 10 to 20% जो है हमारे जितने भी मैमल्स हैं वो किस में है, एक थ्रेटेड लिस्ट में हैं। मैनी ऑफ दीज वुड नाउ बी कैटेगराइज एज क्रिटिकल दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ एग्जिस्टेंस लाइक द चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वाल, फॉरेस्ट। ये सारे एनिमल्स के कुछ नेम दे रखे जो क्या है, अब इंडेंजर्ड या एक्सटेंट स्पीसीज़ में आ चुके हैं, जो हमारे आसपास हैं। बिल्कुल भी इन पे ध्यान नहीं दिया जाता है और ये धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, इनकी लाइफ खतरे में है। वॉट अबाउट स्मॉलर एनिमल लाइक इंसेक्ट एंड प्लांट, जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। Flora and fauna in India. India is one of the world's richest country in terms of vast area of biological diversity and has nearly 8% of total number of species in the world. टोटल नंबर जितनी भी स्पीसीज़ है वर्ल्ड में उसमें 8% किस में है, इंडिया में है। 90,000 स्पीसीज़ ऑफ फौना, 74,000 स्पीसीज़ ऑफ फ्लोरा, 15,000 flowering plants, 2,000 species of birds, 10% of flora and 20% of mammals are in threatened list, मतलब ये खतरे में हैं। The forest cover 78.29 million hectare with 23.81% of the total geographical area। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, क्यों इनकी कमी आती जा रही है। जैसे हमने देखा इसमें कितने सारे स्पीसीज़ हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं इंडिया में, कितने सारे प्लांट्स हैं, कितने सारे फ्लावरिंग है, 15,000 22,000, बट उसके बाद भी ये इतने खतरे में क्यों हैं, क्या कॉजेज़ हैं इनकी डिप्लीशन के। रिसोर्सेज ऑब्टेनिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, रिसोर्सेज लिए जा रहे हैं, जैसे कि पेड़ काटे जा रहे हैं, जो छोटी छोटी लीव्स हैं, जो फ्लावर्स हैं, उनको जो ह्यूमन बींग्स अपने यूज़ करने के लिए लेते हैं, तो जिस वजह से वहाँ पे उनके रहने के लिए, जो एनिमल्स हैं, जो मैमल्स हैं, उनके रहने के लिए स्पेस नहीं मिलता, जिस वजह से वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। In colonial period, the expansion of railways, agriculture, commercial and scientific, फॉरेस्ट एंड माइनिंग एक्टिविटीज़, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, रेलवेज़ वगैरह बन रहा है, एग्रीकल्चर का वर्क हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फॉरेस्ट को धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है, बिल्कुल रिड्यूस कर दिया जाता है, जिस वजह से अपने पर्सनल रिसोर्स के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए ह्यूमन बीइंग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे मैमल्स की जो स्पीसीज़ है उनको ख़त्म करते जा रहे हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे ही देश हमारा आज़ाद हुआ उसके बाद जिस तरीके से एग्रीकल्चर वर्क बढ़ा है, प्लांटेशन हुआ है, सिंगल कॉमर्शियल वैल्यूएबल स्पीसीज़ आर एक्सटेंसिवली प्लांटेड, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, माइनिंग है, गेजिंग है, इन सब की वजह से क्या हो रहा है, जो फील्ड फॉरेस्ट की यूज़ में ली जानी चाहिए उन्हें क्या करा जा रहा है, अपने एग्रीकल्चर वर्क के लिए, अपने इंडस्ट्रियल वर्क के लिए यूज़ में लिया जा रहा है, जिस वजह से डिप्लीशन हो रहा है किसका, फ्लोरा एंड फौना का। नाउ विनिशिंग फॉरेस्ट, कैसे कैसे जो फॉरेस्ट हैं वो गायब हो रहे हैं। द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट डज नॉट डिफ्रेंशिएटेबल बिटवीन नेचुरल फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन, देयरफॉर दीज रिपोर्ट्स fail to deliver accurate information about actual loss of natural forest। अब कुछ रिपोर्ट्स हैं जो बनाई गई हैं जिसमें क्या होता है, एक्चुअल फॉरेस्ट के बारे में पता नहीं चल पा रहा है। देखिए किस तरीके से आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, किस तरीके से जो फॉरेस्ट है उनको काट दिया जाता है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया जा रहा है। अब फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो ह्यूमन, वो एनिमल्स, मैमल्स, ये सब कहाँ रहेंगे, जिस वजह से क्या हो, धीरे धीरे इनकी जो प्रजाति है ये सब इंडेंजर्ड होती जा रही है, ख़तरे में आती जा रही है, कहीं ना कहीं एक समय पे धीरे धीरे वो ख़त्म होती रहेंगी। जैसे आप जानते हैं पहले एक समय पे डायनासोर्स रहा करते थे, डायनासोर्स को रहने के लिए बहुत बड़ा स्पेस चाहिए था, बहुत सारी जगह चाहिए थी जो उनके लिए अवेलेबल नहीं थी और धीरे धीरे वो ख़त्म होते चले गए। उस तरीके से ही आपका चीता है,
डक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनको एक एटमॉस्फेयर चाहिए और उनको वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रहा है। The diminution of deforestation in India are stagnating. The forest cover in the country is estimated at 78.29 million hectares, which is 23.81% of the total geographical area. According to the State of Forest Report 2011, the dense forest cover has increased by 10,900 square kilometers since 1997. However, this apparent increase in the forest cover is due to plantation by different agencies. द डिमिनिशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया स्ट्रिंग। अब क्या है, जो धीरे धीरे जो फॉरेस्ट है वो कटते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। जो एक बहुत बड़े लेवल पे थे, एक बहुत बड़ा परसेंटेज था, जो एक बहुत बड़ी जगह पे हुआ करते थे, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अगर हम रिपोर्ट की बात करें, फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करें 2011 की, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, जो डेंस फॉरेस्ट थे वो बड़े हैं, इंक्रीज़ हुए 10,098 स्क्वायर सिंस 1997 से। हाउएवर उसके बाद भी दिस अपीरेंट इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर ड्यू टू द प्लांटेशन बाय डिफरेंट एजेंसीज। Now, the different categories of extinct plants and animal species based on International Union for Conservation of Natural and Natural Resources. कुछ दिए हुए हैं, कुछ एनिमल्स दे रखे हैं, नेचुरल स्पीसीज़ दे रखी हैं, नॉर्मल स्पीसीज़ जो हैं और जो इंडेंजर्ड हैं, कैसे रेयर स्पीसीज़ है, वनरेबल स्पीसीज़ हैं। नॉर्मल स्पीसीज़ कौन सी होती हैं? स्पीसीज़ whose population level are considered to be normal for their survival such as cattle, cell, pine, rodents, etc. कुछ ऐसी स्पीसीज़ हैं जो अपने लाइफ को इजीली सर्वाइव कर सकती हैं। उनके सर्वाइव करने के लिए जो एटमॉस्फेयर है वो नॉर्मल है, उसे हम नॉर्मल स्पीसीज़ के नाम से जानते हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज़ कौन सी होती हैं? वो स्पीसीज़ जो खतरे में हैं, जो आगे ख़त्म होने के जिनके चांसेस हैं, हो सकता है एक समय आने पर ये स्पीसीज़ ना रहें। जैसे क्या है, दीज आर स्पीसीज़ विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। The survival of such species is difficult in the negative factors that have led to a decline in their population continue to operate. Example कौन कौन से? ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एश, इंडियन राइनो, लाइन टेल्ड मैक्यू, सिंघाई etc. ये सारे कुछ एनिमल्स हैं जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आते हैं। वनरेबल स्पीसीज़ कौन से हैं? देयर आर स्पीसीज़ whose population has declined to level from where it is likely to move into the endangered category in the near future if the negative factor continue to operate. वनरेबल स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ होती है जो अभी खतरे में है, जो भी इंडेंजर्ड के पास आने वाली है, मीन्स ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, उन्हें वनरेबल स्पीसीज़ के नाम से जानते हैं। जैसे ब्लू शीप है, एस्टिक एनिमल, एशियाटिक एनिमल है, गैंगटिक डॉल्फिन etc. रेयर स्पीसीज़ कौन सी होती हैं? Species with a small population may move into the endangered or vulnerable category. The negative factor affecting them continue to operate. Example, the Himalayan brown bear, wild Asiatic buffalo, desert fox and hornbill etc. कुछ ऐसी स्पीसीज़ जो बहुत रेयर, बहुत कम मिलती हैं, बट उसके बाद भी वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं, इंडेंजर्ड में आती जा रही हैं। एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं, दैट यू नीड टू लर्न। अब है एंडेमिक स्पीसीज़। एंडेमिक स्पीसीज़ कौन सी होती हैं? दोज आर स्पीसीज़ विच आर ओनली फाउंड इन सम पार्ट्स एरियाज यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल और जोग्राफिकल बैरियर्स। कुछ स्पीसीज़ ऐसी होती हैं जो आपको नॉर्मली नहीं मिल सकती हैं, जो स्पेसिफिक एरिया में रहती हैं जहाँ पे कि नेचुरल और जोग्राफिकल बैरियर्स बहुत कम होते हैं। एग्जाम्पल जैसे निकोबार पिजन है, अंडमान वाइल्ड पिग है, अंडमान टील है, मिथुन एनेग्रो अरुणाचल प्रदेश का, ये सब चीज़ आपको दे रखी है इसमें। ये आपका इधर देखिए, ये आपका अंडमान टील है। एक्सटिंक्ट स्पीसीज़, दीज आर स्पीसीज़ विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्च और ऑफ नोन और लाइकली areas which they may occur. A species may be extinct from a local areas, regional countries, continent or the other earth. Examples such as the Asiatic cheetah, pink-head duck. वो स्पीसीज़ जो ढूंढने पे भी अब नहीं मिलती हैं, जो एक जगह पे रहा करती हैं, जैसे एशियाटिक आपका चीता है, पिंक डक है, ये सब आपकी अब नहीं रही हैं, ये एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ में आती हैं। So students, thank you for watching this video. In this video lesson, I have told you about flora and fauna, causes of flora and fauna depletion, vanishing forest, and about species.
each and everything you need to learn whatever I am providing you in each and every PPT. आई नो बुक्स के हिसाब से आप लर्न नहीं कर पा रहे होंगे, जैसे इतना बड़ा इसमें दिया हुआ है, इसे समझना करना बहुत मुश्किल है। तो जो पॉइंट्स मैं आपको PPT में प्रोवाइड कर रही हूँ उन पॉइंट्स को लर्न कर रही है, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। कीप लर्निंग, स्टे सेफ, गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।